Good morning, students. How are you all? Fine? Very good. Are you doing practice work? Are you playing? Which game you are playing? Jumping, running, badminton, cricket, football. Which game? I think cricket is your favorite game. है ना? This is your favorite sport? Okay, nice. साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं ना, ओनली प्ले तो नहीं हो रहा, प्लेइंग एंड स्टडिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 3, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8 and today's subtopics are exercise 3D, questions 6, 8, 9, 10. And revision of tables of 19 and 20. So let's start with our question number 6. Exercise 3D, question number 6. A 5-story shopping complex has 24 shops on each floor. Each shop requires 160 tiles. How many tiles will be required for the entire shopping complex? Let's understand the meaning of the question first. 5-story shopping complex means 5 मंजिला है. जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है 5 मंजिल बनी हुई है इसमें. एंड एंटायर मतलब सारा. So what is the meaning of the question now? A 5-story shopping complex has 24 shops on each floor. 5-story shopping complex की हर फ्लोर पे 24 शॉप्स हैं. Each shop requires 160 tiles और हर शॉप के लिए 160 tiles की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है. How many tiles will be required for the entire shopping complex? तो पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? राइट. It is clear from the question that we have to do 2 parts of calculation. One part is first of all we will calculate that how many tiles are required for one shop. It is given 160. Then how many tiles are required for 24 shops? जब हमें 24 shops में कितनी टाइल लगनी है ये पता चल जाएगा, इट मीन्स हमें 1 स्टोरी का पता चल जाएगा और फिर हम निकालेंगे 5 स्टोरीज का. एक मंजिल की कितनी टाइल्स लगेंगी वो निकालने के बाद 5 मंजिल की निकाल लेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 शॉप 160. ये हमें गिवन है. जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो गिवन पार्ट से स्टार्ट करना है. गिवन से ही तो हम रिक्वायरमेंट पे पहुंचेंगे ना कि हमें क्या निकालना है. टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 शॉप 160. टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर 24 शॉप्स. 24 शॉप्स के लिए निकालनी है. देन वी विल मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई बाय 24. So 16 multiply 24 we have done. 4 6 are 24. 4 2 carry. 4 1 are 4 plus 2 6. Second step is there. So cross. 2 6 are 12. 2 1 carry. 2 1 are 2 plus 1 3. So 4 6 plus 2 8 and 3. 384 and then this 0 will be taken in the product to the right side. So the tiles required for 24 shops 3840. Now अब हमें ये पता चल गया कि हमें 24 शॉप्स के लिए 3840 टाइल्स चाहिए और 24 शॉप्स 1 स्टोरी पे हैं और हमें निकालनी है 5 स्टोरीज की. अंडरस्टूड? नाउ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर अ 1 स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. $3,840 tiles required for a 5-story shopping complex. 5-story shopping complex के लिए 3,840 multiply by 5. So 384 multiply 5 we got 1,920 and then 1 0 will be written to the right side of the product. So how many tiles are required for the entire shopping complex? पूरे shopping complex के लिए कितनी tiles चाहिए? 19,200. Clear? Now question number 8.
The product of two numbers is 4,92,723. If one number is 567, find the other number. दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है, वन नंबर गिवन है और हमें निकालना है अदर नंबर. सिंपल करके देखिए इस क्वेश्चन को. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है दैट इज 12. इफ वन नंबर इज 3, देन फाइंड द अदर नंबर. 12 और वन नंबर 3, फाइंड द अदर नंबर. तो 12 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे आपको अदर नंबर मिल जाएगा दैट इज 4. एंड यू कैन चेक योर आंसर. 4 3s are 12. Clear? Means when product is given and one number is given, to find the other number we will divide. Product of two numbers 4,92,723. One number 567. Other number 4,92,723 divided by 567. Clear? Now we will do division. This is dividend, this is our divisor. रफली आइडिया निकाल के देखते हैं कि कहां तक हमें मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है रफ वर्क में. 5 and 4. 4 तो छोटा है, सो टेक 2 digits now. 49. 5 and 49. 5 9s are 45. Then 567 9s करके देखते हैं हम रफ कॉलम में. दैट इज 5,103, which is more than 4,927. So now go to 8s. 567 8s 4,536. Yes, this is correct. We can write down because it is smaller than the given this numeral 4,927. So 567 8s we will do. Now subtract 7 minus 6 1, 12 minus 3 9, 8 minus 5 3, 4 minus 4 0. Now we will take 2 here. Now 2 is taken. 3,912. 567 6 क्योंकि अगेन आप रफ आइडिया ले सकते हैं. 39 5 6 35. 5 6 30 and if you are taking 7s it will be 35. लेकिन हमारा नंबर 5 नहीं है, दैट इज 567. तो आप 6 7 रफ कॉलम में निकाल लीजिए. देन यू विल फाइंड दैट 567 6 is 3,402 which will be written here. Okay, and then 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 9 minus 4 5, 3 minus 3 0, 510 and now 3 will be taken. It is 5,103. 567 9s are 5,103 divided completely. So remainder is 0. So the other number is 869. It was asked in a question to find out the other number. Clear? Now our question number 9. If a number is divided by 573, it gives 391 as quotient and 305 as remainder. Find the number. समझते हैं क्वेश्चन को. इफ अ नंबर इज डिवाइडेड, अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं 573 से, तो ये हमें क्वोशिएंट क्या देता है 391 एंड रिमाइंडर देता है 305. तो हमें वो नंबर निकालना है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर? सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच आर गिवन टू अस. और अभी मैंने बताया कि गिवन पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे अपना सोल्यूशन. डिवाइजर इज गिवन 573 क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं. क्वोशिएंट इज गिवन 391, रिमाइंडर इज गिवन 305 एंड हमें निकालना है डिविडेंड. यू नो दैट फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द डिविडेंड. इजी. सो आवर फॉर्मूला इज dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder.
here is our formula. बेटा इन चार आपके पास थिंग्स हैं, 1 डिविडेंड, 2 डिवाइजर, 3 क्वोशिएंट एंड 4 रिमाइंडर. अगर इन चार में से कोई भी 3 हमें गिवन है तो हम फोर्थ इजिली निकाल सकते हैं. लाइक इन आवर क्वेश्चन, डिवाइजर इज गिवन, क्वोशिएंट इज गिवन, रिमाइंडर इज गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट डिविडेंड. ओके, डिवाइजर 573 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 391 प्लस रिमाइंडर 305. 573 multiply 391. First of all, you will multiply with 1. 573 multiply 1 will be 573 only. Then multiply sign. Second step is there, na? 573 multiply by 9. You will get 5157. So right here, start from 1's place, 7515. Then third step is there, so 2 multiply signs, 2 cross will be there. 0 भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे. Now 573 multiply by 3. Right? 1719. Now we will do addition. 3, 7 plus 7, 14, 4, 1 carry, 5 plus 5, 10 plus 9, 19, plus 1, 20, 0, 2 carry, 1 plus 1, 2 plus 2, 4, 5 plus 7, 12, 2, 1 carry, 1 plus 1, 2. Product we have done. Now we will do addition. Remainder we will add in this product. So 305 is the remainder. 3 plus 5, 8. 4 plus 0, 4. 0 plus 3, 3. 4, 2, 2. So we got our dividend. That is 2,24,348. कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए आपको कोई लास्ट पेज पे, अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे या रफ शीट लेकर के अभी नहीं करना है. आपके पास नोटबुक है, देन डू ऑन दैट सेम पेज. राइट साइड पे आप कैलकुलेशंस करते रहिए एंड हियर यू विल पुट द वैल्यूज. नाउ हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट शुड बी एडेड टू 4,59,684 so that it becomes exactly divisible by 187. क्वेश्चन से ये बात तो पता चल गई कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट शुड बी एडेड. इस गिवन नंबर में क्या ऐड करें कि ये 187 से पूरा डिवाइड हो जाए. इट मीन्स पहले हम डिवीजन करके चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या बचता है. ओके, सो to find the required number, first we will divide. This is our dividend and this is divisor. So 187 2s are 374. Now 9 minus 4, 5. 15 minus 7, 8. 3 minus 3, 0. Now you will take 6. 187 4s are 748. Now 16 minus 8, subtraction will be there. 16 minus 8, 8. 4 minus 4, 0. 8 minus 7, 1. Now next number you will take 8. It is 1088. 187 5s are. ये आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. ओके, 935. 5 that is 935. Now 8 minus 5, 3. 8 minus 3, 5. 10 minus 9, 1. Next number is 4. 187 8s are 1496. Right? Now 14 minus 6, 8. 12 minus 9, 3. 4 minus 4, 0. 1 minus 1, 0. Now we have done division. We got a remainder 38. क्वेश्चन था कि क्या था हमारा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें कि नंबर 187 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. क्लियर? तो अब हमारा रिमाइंडर बच रहा 38. अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 38 नहीं होता तभी हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल माना जाता. 187 और 38 का अगर हम डिफरेंस निकालें हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर कितना कम है. राइट?
सो अब हमने क्या करना है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है 149। अगर ये 149 हम 4,59,684 में ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? आप इसी सेम क्वेश्चन में एक छोटे से एग्जांपल से समझो, नहीं तो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे मालूम है। सपोज करते हैं हमारे वो नंबर लैक्स में है, हम उसको छोटा नंबर कर लेते हैं कि 49 में क्या ऐड किया जाए कि वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट स्टेप डिवीजन, हमने किया डिवीजन 49, 5 से डिवाइड किया, देन 5 9 जा 45, रिमाइंडर इज 4। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रिमाइंडर कुछ भी ना हो ताकि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अगर बेटा यहाँ हमारा 4 की जगह 5 आ जाता तो इट मीन्स ये 5 10 जा 50 हो जाता और रिमाइंडर 0 हो जाता। क्लियर? तो 4 है, डिवाइजर 5 है, डिवाइजर से कितना कम है? 5 minus 4, 1 less है। 1 should be added in 49 so that it should be exactly divisible by 5। अब आया समझ में? क्लियर हुआ ना? यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइजर से। दैट इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। इतने बिग क्वेश्चन को मैंने इतना छोटा सा करके समझाया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा? सो 149 शुड बी एडेड टू 4,59,684 so that it becomes exactly divisible by 187। क्लियर? बेटा क्वेश्चंस हम थोड़े थोड़े ले रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनसे ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम। एंड होमवर्क ऑल्सो वेरी लेस वर्क इज देयर ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके? तो आप रिवीजन करते रहिए, जो लेक्चर है उसको रिवाइज करिए, देन होमवर्क करिए। क्लियर बेटा? नाउ वी विल रिवाइज टेबल ऑफ 19। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190। एंड नाउ टेबल ऑफ 20। 20 की टेबल और 10 की टेबल आपकी फेवरेट टेबल है। जल्दी 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 आप भूलते जाते हो, मिस्टेक करते हो टेंजा पे, है ना? लेट्स रिवाइज। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 20 10 जा 200। Now homework. Your homework is solve question 2 D and E parts of exercise 3C in maths practice notebook। थर्ड सी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के डी और ई पार्ट्स आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन एडक्वाक वेबसाइट ऑल्सो। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2 डी एंड ई पार्ट्स, राइट? Now it's time to do homework discussion. Homework discussion of lecture 7. Your homework was question number 1, H, I and J parts. So open your practice notebook. Yes, very fast. Take your pen or pencil in your hand. H part. The question was given to us 10,005 multiply 900. 10,005 multiply 900 will become 10,005 multiply 9 multiply 100. Then 10,000 multiply 9, 90,000. 45 multiply by 100. So आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट में राइट साइड में 2 zeros पुट कर देनी है।
So your answer is 90 lakh 4,000. Now we will discuss question number 1, I part. 2,979 multiply by 4,000. 2,979 multiply by 4,000 means multiply by 4 into 1,000, as we have done in oral multiplication. 2,979 multiply by 4. It will give you the answer 11,916. 11,916 will be multiplied by 1,000. When we are multiplying 11,916 with 1,000, according to the multiplication rules, we have learned that with this given number, we will put 3 zeros to the right side. So after putting 3 zeros, we will get our answer 1,19,16,000. I hope you all have got the correct answer. Next part, question number 1, J part. 4,497 multiply by 9,000. So 4,497 multiply by 9 multiply by 1,000. We will break this 9,000 into 9 into 1,000. Now we will multiply 4,497 with 9 and we will get 40,479.